Good morning to all. Good morning, sir. Okay, anyone have any idea about the last lecture? We discussed in last lecture. Vectors. Yes. Okay. So in last lecture we have started our unit vector differential calculus. So I already talked about the what is the meaning of the title, how we can define the title, vector analysis plus differentiation. Then we can say that it is the vector differential calculus. In that lecture we also discuss some fundamental concepts. So I quickly go through it and then we go for the next. Okay. So you can see on your screen. Oh, sorry. Day 3, 1 minute. Day 2 is that. Yes. Okay. क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत स्टूडेंट एब्सेंट थे तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं क्विकली. Okay, so first we discuss about the vector. So vector is a quantity with the magnitude and direction. Okay, so magnitude and direction जिसके पास है then you can say that it is the vector. The notation of the vector will be a bar or a arrow. Okay, then we also discuss the scalar. Scalar quantity means if the quantity has the only magnitude then you can say that it is the scalar quantity. Is it visible to all everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then next we discuss about the AB. AB means the destination point is B and origin point A. So if you want to find the vector AB, so B minus A, and you can define in this way. We already talked about this in the last lecture. And same way BA means if you change your destination and origin, then you will get your vector with the negative direction. That means minus A bar. Then we also discuss about the magnitude of the vector. Magnitude of the vector can be defined as modulus of a bar is equal to square root of x1 square plus y1 square plus z1 square. We also do 2 to 3 example for that also. Now unit vector. Unit vector means if you have a vector with the magnitude 1, then you can say that it is the unit vector. Yes or no? Yes, sir. Okay, and if you have any vector, then you can transfer that vector into the unit vector by using this formula. Means a cap means unit vector is equal to a bar upon modulus of a bar. Means if you divide any vector by its magnitude, then it gives you a unit vector. Okay, everybody? Yes, sir. Then how we can define the addition of two vectors, that means a bar plus b bar is, can we do this? ऐसा ये हमने किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन. हाँ सर किया था. Okay, so a bar plus b bar is equal to x1 y1 z1. If you have the a bar and if you have the b bar like this, then you can add component wise, means x1 plus x2, y1 plus y2 and z1 plus z2. Okay, means x component, y component and z component का addition directly. Then subtraction same way means x component दोनों का बीच में difference, y के बीच में difference and z के बीच में difference, that means x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2. Define the subtraction. I also discuss the geometrical interpretation of these vectors. Okay, then there are two types of multiplication, scalar multiplication and usual multiplication. But in usual multiplication we have two different multiplication, that is the dot product and cross product. ये किया था ऐसा? Yes. नहीं सर ये नहीं किया था. Okay, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. So there are two types of vector differential calculation. There are two types of multiplication, possible multiplication for the two vector. First one is the scalar multiplication. Okay, and second one is the usual multiplication. Usual multiplication में जैसे हम करते हैं ऐसे. Okay, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? इफ यू हैव एनी वेक्टर v बार विथ एनी कांस्टेंट अल्फा, सो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मीन्स यहाँ पे अल्फा इंटू, अगर आपके पास यहाँ पे है v1 v2 एंड v3,
then you have to simply multiply alpha to each element. That means alpha into v1, alpha into v2, alpha into v3. This multiplication is known as the scalar multiplication. Understand everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and the usual multiplication have two different subpart. Number one is a dot product, okay, and second one is the cross product. Okay, so दोनों का नोटेशन कैसे मैं आपको दिखाता हूँ. डॉट प्रोडक्ट मीन्स अगर आपके पास एक वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर v2 है, सो दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे, दैट इज नोन एज द डॉट प्रोडक्ट. एंड क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स इफ यू हैव द वेक्टर v1 और v दोनों के बीच में v2 दोनों के बीच में अगर क्रॉस लगाते हो, इट इज नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड? Yes, sir. एंड हियर v1 बार मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिखूँ v1 v2 v3, ओके, और यहाँ पे इसको बोल देता हूँ मैं v1 डैश v2 डैश v3 डैश. तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट मीन्स आपको क्या करना है, एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट करना है. दैट मीन्स v1 इंटू v1 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश प्लस v3 into v3 dash. ओके, सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट. तो कोई डाउट है डॉट प्रोडक्ट में? No, sir. एंड क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स क्या होगा आपको, यू हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट. दैट मीन्स आई जे के. ओके, ये तीनों हमारे डायरेक्शन है, आई जे के एक्स वाई एंड जेड. तो यहाँ पे v1 के एलिमेंट यहाँ पे, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे v1 v2 v3 लिया है. सो v1 v2 v3 यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है. एंड v2 बार में मैंने लिया है v1 डैश. सो v1 डैश v2 dash and v3 dash. Now if you open this determinant, then you will get your cross product. Okay, everybody? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now tell me, which is this quantity, scalar or vector? ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? ये जो आंसर आया वो तो स्केलर ही होगी. नहीं, स्केलर नहीं होता है. देखो, जब भी देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो थे उनको बताया था कि वेक्टर को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं. एक तो पॉइंट से, है ना, एंड दूसरा हमने लिखा था आई प्लस जे वाला फॉर्म. किया था कि नहीं? मीन्स यहाँ पे आपके पास x1 y1 Yes. है, तो यहाँ पे x1 आई कैप, ओके, प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. तो ये अब कौन सा हुआ, देखो आप, वेक्टर हुआ ना, क्योंकि ये पॉइंट के फॉर्म में दिया है, बीच में कॉमा है. तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन in this way. That means alpha v1 I cap plus alpha v2 j cap plus alpha into v3 k cap. So now tell me, which is this quantity, vector or scalar? Vector. वेक्टर. ओके, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है. नाउ थिंक अबाउट द डॉट प्रोडक्ट. चलो डॉट प्रोडक्ट में मुझे बताओ, यहाँ कहीं पर भी आई जे के है? No. और यहाँ कहीं भी पॉइंट जैसा फॉर्म है आंसर में? No. तो दिस गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी. मीन्स डॉट प्रोडक्ट का ऑलवेज आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा. अंडरस्टैंड? Scalar quantity. ओके. Yes. और यहाँ पे देखो, इसको ओपन करेंगे तो आंसर किस में आएगा, आई जे के में आएगा कि नहीं? हाँ. व्हाट वी कैन से दैट इट इज वेक्टर और स्केलर? Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो देखो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन. यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में देयर आर टू डिफरेंट सब पार्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. सो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, यू विल गेट योर आंसर स्केलर, एंड इफ यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, देन यू विल गेट योर आंसर इन वेक्टर क्वांटिटी. एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी वो वेक्टर मिलेगा. सो कीप इन योर माइंड. ओके एवरीबडी?
ओके ओके सर। नाउ अल्फा इंटू ए बार, तो देखो यहाँ पे ए बार था तो उन्होंने 3a बार फाइंड किया। कैसे किया? सो 3 इंटू आई, सो 3i प्लस 3 इंटू 2 दैट मीन 6, 6 इंटू जे तो 6j, 3 इंटू 3 9, सो 9k। ओके, सो दिस इज नोन एज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टैंड? यस सर। देखो Yes. yes, multiplication of vectors, so there are two types of multiplication. Okay, any question बेटा? आप कुछ बोलना चाहें? कुछ बताना चाहता था ना कोई? ओके, सो जैसे मैंने बताया से देर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर कैलकुलस, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. So first we introduce dot product. So dot product means let a bar is equal to x1 I plus y1 j plus z1 k, that means x1 y1 z1, and b bar is equal to x2 I plus y2 j plus z2 k, be two vectors. Then the dot product of a bar and b bar is denoted by a bar dot b bar and defined as a bar dot b bar is equal to x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2. जैसे मैंने बोला इसे x कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस करके y कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस करके z कंपोनेंट का प्रोडक्ट. ओके एवरीबॉडी, डॉट प्रोडक्ट? यस। Yes, sir. हाँ, so these are the notes of this dot product. So first, the dot product of a bar and b bar represents a scalar quantity. मैंने जैसे बताया ऐसे कि जो a bar and b bar का आप dot product find कर रहे हैं, it gives you a scalar quantity. Okay, तो इसीलिए यहाँ पे that is the first note. Okay, then second, the dot product of a bar and b bar is commutative. That means if you go with a bar dot b bar और बी बार डॉट ए बार मीन्स अगर उसको आगे पीछे लिखो तो पर भी दोनों का आंसर ऑलवेज क्या आएगा? सेम आएगा. इट मीन्स बोथ आर दी कॉम्पिटेटिव, मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्पिटेटिव. ओके एवरीबॉडी? यस सर। Okay, if you have the two vectors, okay, a bar and b bar, and if you go with the dot product, then the geometrical meaning of this dot product is a dot b bar is equal to modulus of a bar into modulus of b bar into cos theta. मीन्स ये डॉट प्रोडक्ट जो है ए बार और बी बार का, वो आपके वो दोनों के बीच का एंगल, वो एंगल से उसकी डेफिनेशन हो जाती है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस। ओके, अब आई डॉट आई देखो. व्हाट अबाउट अदर्स? कोई दूसरा कुछ कोई नहीं बोल रहा है? स्टूडेंट, आप नहीं बोलेंगे तब तक मुझे कैसा पता चलेगा कि यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, understand. अंडरस्टैंड ना? Yes. ओके, विकास अकेला अंडरस्टैंड है. व्हाट अबाउट पलक, कार्तिक, जैनिल, सचिन, देव, हेता, करीना, पार्थ, सिद्धार्थ, राम, दृष्टि, निधि, ऐसा को तो पता है. Yes, sir. रमेश एंड विजय. Understand. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Understand. थैंक यू. अब देखो आई डॉट आई मुझे फाइंड करना है, तो आई मीन्स क्या होता है? 100. सो यहाँ पे 100 इंटू 100 आपको करना है, तो क्या आंसर आएगा बताओ? चलो डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से. सो मुझे क्या करना है? 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, सो 0 इंटू 0 प्लस थर्ड में जेड कॉम्पोनेंट का प्रोडक्ट 0 इंटू 0. If you do this, then you have 1 plus 0 plus 0 and we will get 1. Okay, understand? यस सर। सेम Yes, sir. j डॉट j क्या होता है? वो भी 1 हो जाता है. k डॉट k भी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. अब नाउ थिंक अबाउट i डॉट j मीन्स अगर आप डिफरेंट लेते हो, है ना, तो क्या होता है? देखो i मीन्स होता है 100, j मीन्स होता है मेरा 010 क्योंकि इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सो 010. सो ये दोनों का प्रोडक्ट करो, चलो क्या आएगा बताओ?
जीरो वेक्टर नहीं। जीरो वेक्टर नहीं आता है, तो स्केलर ही मिलेगा। देखो यहाँ पे वन स्केलर हुआ ना, तो वेक्टर नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? स्केलर ही बोलेंगे। ओके, सो आई डॉट जे क्या हो जाएगा? देखो 1 इंटू जीरो मीन्स जीरो, प्लस जीरो इंटू वन मीन्स जीरो, प्लस जीरो। सो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। मीन्स इफ यू टेक डिफरेंट कोसाइंस, ओके, डिफरेंट डायरेक्शन, then you will get your answer 0, and if you deal with the same cosine or same direction I dot I, then it will gives us 1. Okay, everybody understand? यस सर Yes, sir. Now next is cross product. Okay, so cross product, so let a bar is equal to x1i plus y1j plus z1k, and b bar is equal to x2y plus y2j plus z2k, b2 vectors. Then the cross product of a bar and b bar is denoted by a bar cross b bar and defined as a bar cross b bar is equal to I j k x1 y1 z1 x2 y2 z2, और जैसे मैंने आपको बताया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या होगा? y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1 आई कैप, ओके, माइनस जे कैप। तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस करके यहाँ पे आपको के कैप के पास क्या मिलेगा? x1 y2 minus x2 y1. So is there any doubt in cross product, dot product and No, scalar? sir. नो सर। Okay, thank you. Then next one, multiplication of the vector की notes अगर हम स्टडी करें, so the cross product of a bar and b bar represent a vector quantity. Okay, so ये दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वेक्टर मिलेगा। वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा ना कि वो कॉम्यूटेटिव है, जैसे इसमें क्या होगा? नॉट कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में अगर हम पोजीशन चेंज करें तो कभी भी सेम नहीं होता है। होता है सेम? नो सर नो। लेकिन वो अगर आप लिखना चाहते हो तो इट विल बी डिफर बाय अ साइन। दैट मीन्स माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा, बी बार क्रॉस ए बार हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. And what is the reason behind that? If you find b bar cross a bar, then you have to write down the factor b bar in second row and a bar in third row. So you are replacing, or if you are changing two rows. So if you change two row, then the property of the determinant gives you minus sign. Yes or no? यस सर है ना? तो ये Yes, sir. उसी के थ्रू में ये होता है। ओके, नाउ इफ यू थिंक अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सो इफ यू हैव द ए बार एंड इफ यू हैव द बी बार एंड द एंगल इज थीटा, so the geometrical representation of the cross product will be modulus of a bar into modulus of b bar into sin theta। वहाँ पे cos theta था, and here there is a extra normal, है ना? normal direction is there, so dot normal direction आएगा। ओके, क्योंकि ये तीनों ही तीनों तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। सो वेक्टर बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हमको नॉर्मल डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द cross product. Okay, everybody understand? यस सर Yes, sir. Okay, and next one is the I cross I. Okay, so I cross I करेंगे तो if you go with I cross I, so यहाँ पे आपका हो जाएगा I J K। यहाँ पे I मीन्स होता है 100 and यहाँ पर भी 100। तो if you have the determinant with the same two row, then what is the answer for that? जीरो है ना? दो रो सेम है ना यहाँ पे, 100 100, देन वी हैव दी 0। ओके, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमको सीधा ही 0 देती है कि नहीं? यस सर Yes, sir. ओके, एंड इफ यू फाइंड j क्रॉस k, तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे I j k एज इट इज, यहाँ पे आपको मिलेगा 0 1 0 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 0 0 1।
So if you solve this, then you will get your answer. चलो इसको सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है. चलो बताओ. इज इट विजिबल टू ऑल? दिख तो रहा है ना क्या लिखा है मैंने? Yes, sir. ओके, चलो आंसर बताओ तो क्या आता है. यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू इनटू आई माइनस करके सर आई आई आएगा पक्का. हाँ यस सर. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1. ओके, and what is the value here? 0 and this 0 is 1. 0. 0. And from that you will get your I. Okay, but if I write k cross j, then Minus I. very good, very good. Okay, k cross j करेंगे then it will be differ by minus sign, so it gives you माइनस. I. ओके, सो इस टाइप के एग्जांपल्स आपको गेट में और एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं. ओके एवरीबॉडी. Yes sir. यस. ओके, चलो नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं. सो पोजीशन वेक्टर इज वेरी सिंपल, यू नो वेरी वेल. मीन्स इफ यू हैव द एक्स एक्सिस एंड इफ यू हैव द वाई एक्सिस एंड इफ यू हैव द जेड एक्सिस, दैट मीन्स एक्स वाई जेड. सो द पोजीशन वेक्टर of P, okay, x1, y1, z1 is nothing but the vector from O to P. This is our origin, so O will be 0, 0, 0. So OP is our position vector. Okay, everybody. Yes sir. यस सर. Okay, so OP is nothing but our position vector. So let O be an origin and P be any point, then OP is called position vector of P with respect to origin O. It is denoted by R bar, और उसको हम क्या बोलेंगे? R bar से denote करेंगे उसको. Okay, position vector always we can say that it is R bar. Okay, this is the universal notation for that. So same figure is here. So यहाँ पे देखो x, y and z एक्सिस लिया हुआ है और यहाँ पे p है. p का यहाँ पे होगा x1, y1, z1 पॉइंट है वो, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ 3 डायमेंशन. सो यहाँ पे o मीन्स 0, 0, 0 एंड इफ यू फाइंड द OP वेक्टर then we will get x1 minus 0, y1 minus 0 and z1 minus 0. And if you write down in the vector form, then it means x1i plus y1j plus z1k. So any doubt, any question in position vector? Anybody? No sir. What about others? No, sir. Okay, now we go for the tangent vector or velocity vector. Means sometimes we can say that it is tangent whenever we apply the situation, and you can say that same vector will be your velocity vector. So tangent vector and velocity vector both are the same as per the vector differential calculus, and it is nothing but the first differentiation of your position vector. Means if a particle moves along the position vector r bar, then the tangent vector or velocity vector of a particle at any point is defined as, अगर टेंजेंट वेक्टर की बात करते हो तो उसको टी से डिनोट करेंगे, दैट मीन्स टी बार. अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसको वी बार से डिनोट करेंगे. इट इज़ नथिंग बट डी आर बार बाय डी टी. सो अवर पोजिशन वेक्टर आर बार है तो उसका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे. इट गिव्स अस टेंजेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर. अंडरस्टैंड? यस सर. Yes sir. Okay, then second one is the normal vector or acceleration vector. Means normal vector and acceleration vector is nothing but the second derivative of the position vector. That means if a particle moves along the position vector r bar, then the normal vector or acceleration vector of a particle at any point is defined as n bar. नॉर्मल का हम n लेंगे, दैट मीन्स n बार, और एक्सीलरेशन का a लेंगे. सो a बार इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बार बाई डी टी स्क्वायर. दैट मीन्स 2 times differentiation of the position vector r bar. And you can also say that n bar is nothing but d v bar by dt. ओके, क्योंकि नॉर्मल की बात करते हैं तो टेंजेंट यूज करेंगे, सो डी टी बार बाई डी टी.
and if you go with the acceleration, then it is nothing but dv bar by dt. Okay, everybody? Understand? Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि Yes, sir. टी बार एंड वी बार जो है वो ऑलरेडी वन टाइम डिफ्रेंसिएशन है, तो उसका फिर से करेंगे, दैट इज दी आवर नॉर्मल एंड दैट इज आवर एक्सेलरेशन. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज द कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी वेक्टर. मींस कंपोनेंट मींस कोई वेलोसिटी वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट हम फाइंड कर रहे हैं इन द वन डायरेक्शन. सो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t in the direction v bar is defined by vt bar is equal to v bar dot p cap is equal to v bar into b bar divided by modulus of v bar. ओके, सो आपको वेलोसिटी वेक्टर इनटू उसका क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे बी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट फाइंड करना है वो. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, same for the acceleration vector. Means if you want to find the component of acceleration vector, then you have to multiply the unit direction with that. That means a t bar is equal to a bar dot p cap is equal to a bar dot b bar by modulus of b bar. That is the component of the acceleration vector. तो इसका एग्जाम्पल आपको हमको करना है, तो देखते हैं. चलो, so is there any doubt, any question up to here, anybody? No, sir, no doubt. Yes. Okay, then we go for the next. Okay. First example. Mute yourself. Yes, thank you. Okay. First example. Find the tangent vector and normal vector at t is equal to 0 along the curves x is equal to 3 cos t, y is equal to 3 sin t, z is equal to 4t. तो जब भी आपको यहाँ टेंजेंट या फिर नॉर्मल या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट फाइंड आउट योर पोजीशन वेक्टर आर बार. सो पोजीशन वेक्टर आर बार मीन्स एक्स आई, मीन्स जो भी एक्स डायरेक्शन है उसका आई के साथ वाई जे प्लस जेड के, मीन्स एक्स कॉम्पोनेंट इंटू वाई प्लस वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे प्लस जेड इंटू के. सो यहाँ पे आपको एक्स कॉम्पोनेंट दे दिया गया है. कौन सा कॉम्पोनेंट है एक्स कॉम्पोनेंट? 3 cos t. 3 cos t. So 3 cos t into I plus y component है मेरा 3 sin t into j. 3 sin t. J Yes. cap. And z component है मेरा 4t into 4 t J cap. yes. So this is my position vector. अब आपको पता है कि टेंजेंट वेक्टर कैसे फाइंड करना है, नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड करना है. हाउ वी कैन फाइंड द टेंजेंट वेक्टर, एनीबॉडी? Tangent vector means dr by dt. very good, not d square. Okay, dr bar by dt gives us the tangent vector. And what about normal vector? D square r bar by dt square. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो Yes, अब sir. यहाँ पे जो आर बार हमने फाइंड किया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, तो उसको टी बार बोल देते हैं. सो टी बार इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर बार बाई डी टी. ओके, सो डी आर बार मेरा क्या होगा, सो 3 कॉस टी जो है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा है ना, 3 कॉस टी आई प्लस 3 साइन टी जे प्लस 4 टी के. ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते टर्म बाय टर्म होता है. तो यहाँ पे देखो 3 बाहर चला गया, कॉस टी का क्या हो जाएगा, Minus sin t. Minus sin t. सो माइनस साइन टी मैंने यहाँ पे रख दिया. चल, उसके बाद प्लस 3 फिर से बाहर चला गया, साइन टी का Cos t. Cos t. यहाँ पे आई जे के नहीं बोलना है. ओके, आई जे तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 4 टी का 4 एज इट इज रहेगा, टी का 1 1. 1. So k cap. So this is my tangent vector. Okay, everybody understand?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now they want to the tangent vector at time t is equal to 0. यहाँ पे देखो आपको बोला गया है कि t is equal to 0 के लिए फाइंड करना है. So if you substitute t is equal to 0 in this, then you have -3 sin 0 I plus t cos 0 j plus 4k. So what is your answer? Sin 0 means 0. Okay. So 3j plus 4k. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is your required tangent vector at t is equal to 0 point. Okay, understand everybody? Yes, sir. Okay, sir. Yes. Next is our normal vector. So normal vector means मैं उसको ऐसे लिखूँ तो चलेगा कि नहीं बताना मुझे. n bar is equal to dt bar by dt. क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि ये दोनों ही दोनों सेम ही है. r bar by d square r bar by. चलो पहले उसको लिखता हूँ बाद में इसको. तो यहाँ पे देखा d square r by dt square and it is nothing but dt bar by dt. Is it true or false? True. True. क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टी बार तो उसी का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ना. Yes, sir. तो यहाँ पे जो टी बार है मेरा ये Yes, sir. इक्वेशन 1 में उसी का मैं यूज करूँगा. चलो तो इसका फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -3 एज इट इज. साइन टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? Cos t. वेरी गुड. कॉस टी I. प्लस I. 3 आई कैप. यस यस. 3 कॉस टी का -3 sin t. Minus sign. Minus sin t. -3 sin t. टी जे प्लस 4k का 0. Plus 1 के. 4 का ही Plus करना है हमको. 0, 0. 0 into k, that means 0. So we have -3 cos t I -3 sin t into j. That is your normal vector. Now we want to find the normal vector at time t is equal to 0. So what is the value of this? -3i. So 3 cos 0 I minus 3 sin 0 j, and this gives me -3 I because sin 0 will be 0. So any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. I want सर पोजीशन वेक्टर जो रहता है हाँ तो yes. उसमें h1 जो रहता है वो हमें कंपलसरी 0 ही लेना रहेगा हर बार. कौन सा पोजीशन वेक्टर में जो हम h2 माइनस h1 करते हैं हाँ तो वो हर बार 0 ही रहेगा कि कुछ और भी ले सकते? हाँ, अगर आपकी फ्रेम जो है मीन्स आपको जो बोला गया है कि यूजुअल पोजीशन वेक्टर तो ऑलवेज वो 0 रहेगा. बट इफ यू हैव द 2 पॉइंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट 2 पॉइंट्स you want to find the position vector, then you deal with both the point. Okay, ओके सर. है ना. मीन्स जब यूजुअल मीन्स कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो यू हैव टू टेक सिंपली अकॉर्डिंग टू दैट. एंड इफ यू हैव द मेंशन that you can find the position vector with reference to these 2 points, then you have to do with that. Okay. यस सर. ठीक है. और मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन ही होता है. कभी कभी अगर आपको करना है तो यू कैन यूज द ट्रांसलेशन वेक्टर. मीन्स आप उसको ट्रांसलेट करके कर सकते हो. लेकिन पोजीशन वेक्टर की जब बात आती है देन यू हैव टू डू विद द ओरिजिन आल्सो. ओके, सॉरी ओरिजिन ओनली. Yes. ओरिजिन के साथ ही लेना है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं लेना है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, so whatever we Yes, discussed, sir. all things are right down here. You can see. Okay, आप देख लो एक बार, then we go further.
Any question in this slide? No, sir. Okay, then next one is normal vector. ओके, सो n बार जो हमने फाइंड किया ऐसे ही है पूरा एज इट इज, है ना। हमने सीधा क्या ले लिया था, dt बार बाई dt ले लिया था। उन्होंने वही प्रोसीजर किया लेकिन थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाया। सो आवर आंसर इज ऑल्सो -3i, सो यू कैन सी हियर। So any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. What about others, please? No, sir. No doubt. Okay, next example. So if a particle moves along the curves x is equal to t square, y No, sir. No doubt. t minus 1, yes, thank you, z is equal to 3, then find the unit tangent vector and unit normal vector at time t is equal to 3. Okay, अब यहाँ पे देखो what you want to find. चलो मुझे बताओ कि इसमें मुझे फाइंड क्या करना है। सर पहले टेंजेंट एंड टेंजेंट उसका वो फाइंड करना है, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में नॉर्मल एंड उसका यूनिट नॉर्मल। यस और नो एवरीबॉडी? यस। Okay, so we start with again the position. Yes, sir. So r bar is equal to x, y, z. So x component is your t square. So t square I plus t minus 1 j plus 3 k cap. Okay, चलो वो कर दिया मैंने। Now the tangent vector मुझे फाइंड करना था, तो t bar is equal to क्या हो जाएगा, dr bar by dt. So dr bar by dt means इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t into I, t का 1 minus 0, so 1j plus 3 का 0, so 0 into k, so we have the 2ti plus j. Now simply put at t is equal to 3 because they require the unit vector, unit tangent vector and unit normal at t is equal to 3. So we substitute here t is equal to 3, so we have 2 into 3, that means 6i plus j में तो कहीं t है ही नहीं, तो we put at as it is, so j, so 6i plus j. Okay, so this is our tangent vector at t is equal to 3. Now we want to find the unit tangent vector. तो unit tangent vector के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है। ओके, सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, टी कैप उसको बोलते हैं। सो टी बार डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ टी बार, सो दिस इज अवर टेंजेंट डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंट, सो दिस इज योर यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। Same procedure we will follow for the normal vector. So n bar is equal to d square r bar by dt square. So उसको अगर आप फाइंड करेंगे तो इसी का फिर से फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, सो 2t का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सो 2i से बचेगा। Now if you simply substitute at t is equal to 3, then you will get your normal at t is equal to 3 will be 2i। क्या अब ये 2i हो जाने के बाद क्या होगा, उसका यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है। सो यूनिट नॉर्मल विल बी n बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n बार, सो 2i अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 2i क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, सो वी हैव 2i अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो 2i by 2, सो दिस इज अ यूनिट normal vector for the given data. So is there any doubt, any question in this example, anybody? नो सर। Okay, next is your more examples. चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ट्राई फॉर फर्स्ट वन। चलो फर्स्ट वन के लिए एवरीबडी ट्राई करो। चलो ट्राई करो सब लोग। सर माइनस साइन आई थे, ओके, माइनस माइनस कॉस जे थे। 40। अगर ये आंसर है तो ये गलत है क्योंकि वही यहाँ सर उस बाद में उसका मॉड करना था, मतलब वर्ड करना बाकी है। यस, मतलब 1। 1, यस, यू आर राइट। ओके, सो देखते हैं। चलो
यहाँ पे जिसको नहीं पता चला है यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज योर फर्स्ट एग्जांपल? सो इफ r bar is equal to sin t I cap plus cos t j cap plus t k cap, then find modulus of, that means d square r bar by dt square. Okay, we want to find this one. So first we have to find d square r bar by dt square. So start with r bar is equal to sin t I plus cos t j plus t k. Okay, then differentiate it with respect to t. So what is the differentiation of sin t with respect to t? cos t. Cos t. Cos t माइनस साइन टी है ना, एंड यहाँ पे टी का 1 हो जाएगा. सो दिस इज योर डी आर बार बाई डी टी. नाउ नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो कॉस टी का फिर से क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे और इसका 0 हो जाएगा. सो इफ यू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दैट, ओके, d square r by dt square will be square root of minus sin t whole square plus minus cos t whole square. So square root of sin square t plus cos square t, and it gives us, what is the value of sin square t plus cos square t? What is the value of sin square t plus cos square t, student? 1. 1. Square root of 1 is always 1. So यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1. So how many student get this answer? Please raise your hand. कितने लोगों को ये आंसर मिला? आपका हैंड रेज करो. यस, वेरी गुड. ओ ओके ओके, वेरी गुड. बाकी के लोगों ने ट्राई नहीं किया है क्या? कार्तिक, जैनिल, देव, हेता, सिद्धार्थ, Ram, Om, you don't try for this? Yes, आप सभी ने कर दिया. Now only 3 people have not tried for this. Kartik, Heta, Om. Okay, and we go for next example. So you can see next example is 1 minute. Yes. Find the unit tangent vector and unit normal vector at time t is equal to 2 along the curves x of t is equal to t square minus 1, y of t is equal to 4t minus 3, and z of t is equal to 2t square minus 6. So I give this example into homework. चलेगा ये? आप कर पाएंगे ना? Because this is the repetition type. Yes, Yeah? Everybody do it? Yes, sir. Okay, now think about the next example. If a particle moves along the curves x is equal to tq plus 1, y is equal to t square, and z is equal to 2t plus 5, then find the components of its velocity and the acceleration. चलो हमको क्या फाइंड करना है, उसके कंपोनेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन एट टाइम t is equal to 1 in the direction. The given direction is 2y plus 3j plus 6. Okay, चलो let's try for that. So what is our r bar here? r bar क्या हो जाएगा, आपको दिया ही है ना, कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. सो अवर एक्स इज हियर टी क्यू प्लस 1 प्लस, सॉरी आई रह गया, प्लस वाई आपका है टी स्क्वायर इंटू जे, एंड जेड आपका है 2t प्लस 5. यस और नो एवरीबडी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you have the idea about the velocity vector, component of the velocity vector and component of the acceleration vector. So I want to find the Vt bar. तो Vt bar के लिए definition क्या था? If you don't forget, then V bar into B cap. Yes or no?
सर VT बार तो dr by dt ही ना। नहीं 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 नहीं, भूल गया। ओके, मैंने रखा है प्रेजेंट। यस यस, यू कैन सी दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. ओके सर, ओके सर। Okay, everybody यस understand? सर। Okay, then you can see here. Yes, sir. तो सबसे पहले मुझे v बार फाइंड करना है. सो v बार इज माय नथिंग बट dr बार बाय dt. यस और नो? यस सर। चलो बताओ, यहाँ पे क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ टी क्यू प्लस 1 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप प्लस 2 k कैप. इज इट क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. यहाँ पे सेम मुझे ए टी बार फाइंड करना है, तो आई नीड ए बार इंटू बी कैप. सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू फाइंड द ए बार. सो ए बार इज नथिंग बट द डी स्क्वायर आर बार बाय डी टी स्क्वायर एंड इट इज बी बाय डी टी ऑफ वी बार. तो इसी का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 6ti प्लस 2j प्लस 0. ओके, सो ए बार इज इक्वल टू दिस वन. नाउ इनटू बी बार करना है. हियर ऑल्सो बी बार, जो हमको डायरेक्शन दिया है वो कौन सी डायरेक्शन दिया है? 2i प्लस 3j प्लस 6k. ओके, सो 2i प्लस 3j प्लस 6k. ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टूड? Yes, सर sir. यस सर, यस सर। Yes. ओके, अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं. यस यस, कोई पूछ रहा है कुछ? यस. सर एक बार क्वेश्चन लेता हूँ ना इसका। ओके 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 ओके, यस दिस वन. ओके सर। ओके, अब देखो, यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं. एक तो हमको t इज इक्वल टू 1 को भी फोकस करना है. तो इफ़ यू गो विद दी हियर, दैट मीन्स v बार एंड t इज इक्वल टू 1, देन यू कैन टेक हियर. एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या कर सकते हो आप? लास्ट में भी ये सब्सटीट्यूट कर सकते हो आफ्टर फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन. दो तरीके से आप कर सकते हो, दोनों वे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एट टी इज इक्वल टू 1 लेके ही चल रहा हूँ आगे. सो यहाँ पे देखो, टी इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 3i प्लस 2j प्लस 2k. यस और नो? Yes, sir. ओके, एंड ए बार एट टी इज इक्वल टू 1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 6i प्लस 2j. ये प्रोसीजर आप लास्ट में भी कर सकते हो, वो भी आपको दिखा देता हूँ. सो वी टी बार, व्हाट इज माई वी टी बार? द डेफिनेशन ऑफ द वी टी बार इज वी बार इंटू बी क्या. अगर आपने पहले टी सब्सटीट्यूट नहीं किया है तो आपको इसके साथ चलना है. अगर आपने कर दिया है तो इसके साथ चलना है. ओके, तो मैं दोनों ऑप्शन आपको दिखाता हूँ. टी स्क्वायर आई प्लस 2tj प्लस 2k इंटू बी कैप मीन्स बी बार. बी बार मेरे पास है 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड डिवाइड बाय इट्स मॉड्यूलस, दैट मीन्स 4 प्लस 9 प्लस 36. यस और नो एवरीबडी? यस सर। Yes, sir. ओके, इफ यू मल्टीप्लाई हियर देन यू हैव 3 डॉट प्रोडक्ट आया ना यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए कैसे यस करते सर। हैं वो आपको याद होना चाहिए. तो 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6t स्क्वायर प्लस 2t इंटू 3 दैट मीन्स 6t प्लस 2 इंटू 6 दैट मीन्स 12. एंड हियर व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 48, 48. Sure. 49, 49, 49, 7। 49. Okay, so you have 6t square plus 6t plus 12 divided by 7. That is the velocity component. Okay, now you want to find velocity component at t is equal to 1. So it gives you 6 plus 6 plus 12 divided by 7. So you have 24 by 7. Yes or no, everybody? यस सर।
ओके अब ये मैंने कैसे किया कि पहले एज इट इज लेके किया, अब जो 80 बार है मैं सीधा यूज कर रहा हूँ। तो 80 बार क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी कैप। तो ए बार मैंने यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 फाइंड कर ही लिया है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा। सो 6i प्लस 2j, अब दोनों तरीके से कर सकते हो, और यहाँ पे तो एज इट इज आएगा। सो 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइड बाई 7, सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी डू इट। नाउ मल्टीप्लाई ऑफ दिस, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर। सो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, दैट मीन्स इट गिव्स मी 12 प्लस 6 प्लस 0, क्योंकि 6 इंटू के यहाँ पे 0 है, तो 6 इंटू 0 हो जाएगा 0। अंडरस्टैंड एवरीबडी? यस सर। सो इट गिव्स यू 18/7। सो आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मैंने दोनों आपको दिखा दिया। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल, एनीबडी? No, sir. ओके, सो वी कंप्लीटेड दिस 3, दिस इज इन होमवर्क। ओके, तो इसको ट्राई करना, प्लीज ट्राई फॉर दिस। ओके, now so this is about the today's lecture, today's session. So is there any doubt, any question in today's session, anybody? नो सर। No, sir. Okay, so good day, take care.